my name is Momita. I have completed my M.Pharm and currently I am doing my job in ITS College of Pharmacy, Muradnagar, Ghaziabad. So today we will be seeing our 7th SEM unit 7th SEM unit 4 under novel drug delivery system. ठीक है. So the first topic which I will be covering today and I will be starting today, that is targeted drug delivery system. So you will be well known about this. I am giving today the first topic about is the introduction to the targeted drug delivery system. So targeted drug delivery system. So what is targeted drug delivery system? So it will be very well known or it will be very much new for you people. That means targeted means हम एक हमारे बॉडी में किसी भी सिस्टम में या फिर किसी भी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में या फिर अफेक्टेड जो सेल्स होते हैं उसमें हम अपने ड्रग को टारगेट करते हैं, उसमें हम अपने ड्रग को टारगेट करते हैं. सो टारगेट कैसे करते हैं? बाय एंट्रैपिंग इनसाइड ए कैरियर सिस्टम. सो आई विल शो यू. सो फर्स्ट आई विल सी व्हाट इज ड्रग टारगेटिंग. What is the definition of drug targeting? So, discriminating and efficient localization of pharmacological active moiety at predefined target while restricting its access. Fine. So, यहाँ पे इसका मतलब है जो हम organs, जो हम carriers use करते हैं, you can see this is a nanoparticle, this is one type of carrier. Fine. In this carrier will be incorporating our drug, and this carrier through your systemic circulation it will take to your targeted delivery system, that is your organ or cell. But this to be very much careful, targeted drug delivery जो है it will only affect the affected cells. ठीक है, it does not affect एनी नॉन अफेक्टेड सेल. जिस सेल्स में आप टारगेट करोगे उसी सेल्स में जाके आपका नैनो पार्टिकल या लाइपोसोम्स या न्यूसोम्स ड्रग को रिलीज करेगा और आपका ड्रग उस अफेक्टेड सेल्स में या ऑर्गन्स में जाके उसको थेराप्यूटिक जो डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट है दैट विल बी डिलीवर्ड. ठीक है. सो अदर देन द अफेक्टेड सेल्स या अफेक्टेड ऑर्गन्स, जो हेल्दी सेल्स या हेल्दी ऑर्गन्स है दैट वोंट बी अफेक्टेड बाय योर ड्रग विच विल बी कैरिड बाय योर कैरियर, दैट इज योर नैनो पार्टिकल और लाइपोसोम्स. फाइन. सो दिस इज द डेफिनेशन. Your drug targeting system, in drug targeting system your cells will be entrapping in the carrier and that will go to your affected cells and they will release or they will give you the expected or desirable therapeutic effect. Next, what are the reasons for drug targeting? Why we are doing the drug targeting system? Why we are following the NDDS, that is novel drug targeting? So first is your drug instability. Drug की अगर कोई भी stability issues है that can be overcome by your drug targeting system. Next, low absorption. सिमिलरली ड्रग का अगर एब्जॉर्प्शन का इशू है कि आपके बॉडी में जाके वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है प्रॉपरली, सो दैट विल बी rectified by using your drug targeting system. Short half life you know that is 50% of the drug will be eliminated from your body, that is known as half life. If your drug has short half life, that also can be overcome by drug targeting. Low volume of distribution, low specificity. Specificity means some drugs अगर हम orally administer करते हैं तो full GIT आपका जो drug है वो पूरे GIT को travel करके systemic circulation के through वो therapeutic index आपको provide करता है. So there is no specificity. आपके non targeted, non affected cells भी आपके इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्रग टारगेट कर रहे हो तो स्पेसिफिकली एक अफेक्टेड ऑर्गन में जाके ही आपका ड्रग आपका थेराप्यूटिक डिज़ायरेबल थेराप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोवाइड करेगा. लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट है या फिर ड्रग की थेराप्यूटिक इंडेक्स कम आ रही है, दैट ऑल्सो कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग ड्रग टारगेटिंग सिस्टम. Next, approaches of your drug targeting system, that is controlling. So we have three approaches: controlling the distribution of drug by incorporating it in a carrier system. So drug की जो distribution है उसको हम एक carrier system में incorporate करके आप distribution drug distribution को control कर सकते हो.
नेक्स्ट, ड्रग का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो बाय इनकॉर्पोरेटिंग इन द कैरियर सिस्टम. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द इनपुट ऑफ द ड्रग इन द बायो एनवायरनमेंट, दैट इज योर बॉडी. बॉडी में जो पीएच सिस्टम है, जो पीएच है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके, उसमें प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करके आप अपने ड्रग की जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है उसको आप एनहांस कर सकते हो. सो दीज आर द 3 अप्रोचेस through which we will be getting by using drug targeting system. Next, properties. So properties जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, that is the properties of your carrier system. जो carrier आपके ड्रग को कैरी करके till your targeted system या targeted cells तक लेके जाएगा, that will be your, यहाँ पे उसकी properties को हम देख रहे हैं. So the first property, a carrier should have the first property, that is non-toxic, biocompatible, physicochemical stability, that is in vivo and in vitro, आपके बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर बोथ उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी देखना ज़रूरी है. ठीक है, और ड्रग और कैरियर के बीच में कंपेटिबिलिटी होना भी ज़रूरी है, सो दैट आपका ड्रग डिग्रेड ना हो वाइल कैरिंग, वाइल आपका कैरियर जब आपके ड्रग को कैरी करेगा. Next, restrict the drug distribution to the targeted cells or tissues or organs or should have uniform capillary distribution. So आपका जो ड्रग है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिर्फ टारगेटेड सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन्स में ही रेस्ट्रिक्ट करेगा आपका कैरियर, बाकी जगह पे आपके ड्रग को रिलीज नहीं करेगा आपका कैरियर. नेक्स्ट, कंट्रोलेबल एंड प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ ड्रग रिलीज. ठीक है, आप बाहर से प्रेडिक्ट करके बता सकते हो कि आपका ड्रग रिलीज कैसे होगा आपके टारगेट सिस्टम में पहुंचने के बाद. नेक्स्ट, मिनिमल ड्रग लीकेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट. ट्रांजिट इज मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे आपका कैरियर आपके ड्रग को लेके जाता है टिल योर टारगेटेड साइट, दैट इज नोन एज द ट्रांजिट. सो ट्रांजिट के दौरान आपका कैरियर सिस्टम से आपका ड्रग लीकेज नहीं होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज जितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपने सोचा था, जिस अमाउंट, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ ड्रग से आपको थेराप्यूटिक एक्टिविटी चाहिए थी, उस 1 ग्राम से अगर लीकेज हो रहा है तो आपको डिज़ायरेबल थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी. कैरियर यूज मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल. कैरियर जो है उसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, दैट मीन्स आपका ड्रग को लेके जाना और उसको रिलीज करना. अदर देन दैट आपका ड्रग का कोई भी फंक्शन, आपके कैरियर का कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी बायोडिग्रेडेबल. ये डिग्रेड कर सकता है इमीडिएटली, इट शुड डिग्रेड एंड इट शुड रिलीज फ्रॉम योर बॉडी, दैट इज इट शुड एक्सक्रिएट फ्रॉम योर बॉडी विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक रिएक्शंस. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन. जो कैरियर की प्रिपरेशन है, दैट शुड बी ईजी, simple, reproductive and effective, cost effective. So these are the several properties of your carriers which will be carrying your drug from your route of administration till your targeted site. Next, what are the properties जो आपके ड्रग, ये 3 प्रॉपर्टीज है जो आपके ड्रग टारगेटिंग को अफेक्ट करता है. दैट इज, फर्स्ट इज योर ड्रग, next is your carrier, next is the in vivo environment. So drug आपका कैसा होना चाहिए, इसका concentration, इसका particulate location and distribution. So ये 3 चीज़ें आपको consider करना है under drug. उसके साथ उसका molecular weight, physicochemical properties, drug carrier interaction. So ड्रग की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ वाइल इनकॉर्पोरेटिंग और वाइल एंट्रैपिंग योर ड्रग इनसाइड द कैरियर, यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि ये सारी चीज़ें आप अपने कैरियर के साथ प्रॉपरली मैनेज कर सकते. कैरियर की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है जो आपके ड्रग टारगेटिंग सिस्टम को अफेक्ट करेगा, दैट इज टाइप ऑफ द कैरियर, अमाउंट ऑफ द एक्सिपिएंट्स, आप कैरियर में किस तरीके के एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स ऐड कर रहे हो, दैट ऑल्सो शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. नेक्स्ट, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द सरफेस चार्ज, पार्टिकल साइज, ये है अंडर सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज एंड द डेंसिटी ऑफ योर कैरियर.
सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज अंडर कैरियर, जिसको आपको जब कैरियर की फॉर्मुलेशन आप करोगे दैट टाइम इट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. नेक्स्ट, इन वाइवो एनवायरनमेंट, दैट इज इनसाइड, जब आपके बॉडी के अंदर जाएगा आपका ड्रग, तब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वाइल फॉर्मुलेटिंग योर कैरियर एंड वाइल एंट्रैपिंग योर ड्रग इन द कैरियर. pH, polarity, ionic strength, surface tension, viscosity, temperature, एंजाइम, क्योंकि समटाइम्स आपका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स आता है या थेराप्यूटिक एक्टिविटी आती है दैट ड्यू टू द एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी. सो आप जब टारगेट करोगे यू हैव टू सी व्हाट आर द एंजाइम प्रेजेंट इन दैट टारगेटेड एरिया. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट इज द चार्जेस in that proper electrical targeted site. So these are the properties you have to take in consideration while formulating your carrier and the drug. And ये अगर सही या properly आप manage नहीं करते हो then that can influence or affect your targeting drug delivery system. Fine? Okay. Next, this is the important part of your targeting system, that is the strategies. What are the strategies you will be following while preparing or while targeting your drug to the drug targeting cells, tissues or organs. So first one is passive targeting, active targeting, inverse targeting, dual targeting, double targeting and combination targeting. So these are the various strategies जिसको हमें follow करना है जब हम target करेंगे आपके drug को to the targeted site. So first one is passive targeting. Passive targeting means ये जो targeting है ये आपके RES को follow करता है, that is your reticuloendothelium system. दैट इज़ योर RES, रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम. जो आपका ड्रग है, जो आपका कैरियर है, वो विद द रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम के साथ आपका ड्रग आपका कैरियर आपके ड्रग को टारगेटेड साइट तक लेके जाएगा. दैट इज़ आपका जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें जो आपका रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम है, थ्रू दैट पाथवे आपका कैरियर आपके टारगेटेड साइट तक आपके ड्रग को लेके जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे जो हम मेनली जो कैरियर्स यूज़ करते हैं दैट इज़ द कॉलोइडल कैरियर्स. फाइन. सो विल बी यूजिंग द कॉलोइडल कैरियर्स विच विल गिव यू द थेराप्यूटिक अपॉर्चुनिटीज़. सो यहाँ पे जो मेनली जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स, ये सारे ड्रग्स हम यूज़ करते हैं जिसमें हम अपने कॉलोइडल कैरियर्स को यूज़ करते हैं थ्रू फॉर टारगेटिंग योर ड्रग टू द टारगेटेड साइट. Next is your inverse targeting. Inverse targeting is completely reverse case of your passive targeting. Inverse targeting में रेटिक्यूलो एंडोथेलियम पाथवे या सिस्टम फॉलो नहीं होता. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ पैसिव अपटेक ऑफ द कॉलोइडल कैरियर्स. सो यहाँ पे जो आपका रेटिक्यूलो एंडोथेलियम सिस्टम का पाथवे है वो आपका यूज़ नहीं होता in inverse targeting. So it is completely avoiding the passive uptake of the reticuloendothelial system. ठीक है. सो ये कैसे करता है, ये इन्वर्स टारगेटिंग हम अचीव करते हैं जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है उसको सप्रेस करके आपका कॉलोइडल कैरियर एक मैक्रोमोलिक्यूल लाइक डेक्स्ट्रन सल्फेट एक मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, सो इसका साइज ऑफ द कैरियर जो है वो बड़ा होता है. थ्रू दैट मैक्रोमोलिक्यूल्स आपका ड्रग अगेंस्ट द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम आपका कैरियर ड्रग को टारगेटेड साइट तक लेके जाता है. So other than suppressing or repressing your reticuloendothelial system, जो other strategies हम follow कर सकते हैं that is modification and defined manipulation of size, surface charge. So हम अपने size को modify कर सकते हैं, surface charge को modify कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन को मॉडिफाई कर सकते हैं. आपके कैरियर की कॉम्पोजिशन को आप मॉडिफाई कर दो, उसकी हाइड्रोफिलिसिटी दैट इज़ लिपिड जो स्ट्रक्चर है, जो फॉस्फोलिपिड आपके लाइपोसोम्स में प्रेजेंट है उसको हम मॉडिफाई करके, या सरफेस रिजिडिटी दैट इज़ द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ योर कैरियर उसको हम बदल के हम
डिस्ट्रीब्यूशन, आपके ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन आपके टारगेटेड साइट में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्टिव टारगेटिंग। एक्टिव टारगेटिंग इज द डेफिनेशन ऑफ योर टारगेटिंग, दैट इज हम मॉडिफाई करते हैं आपके ड्रग और कैरियर का जो फंक्शन है उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करके सीधा आपके टारगेटेड साइट में लेके जाके आपके ड्रग को रिलीज करते हैं। दैट इज इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन और फिक्शनलाइजेशन ऑफ द ड्रग कैरियर्स सो दैट आपका जो कंटेंट है, आपका जो ड्रग है वो सीधे जाके आपके टारगेटेड साइट में ही वो रिलीज हो सके। सो दैट्स व्हाई एक्टिव टारगेटिंग कैन बी अफेक्टेड एट डिफरेंट लेवल्स। सो अगर आपको ऑर्गन में किसी अफेक्टेड ऑर्गन में टारगेट करना है, सो दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर एक्टिव टारगेटिंग। अगर आपको सेलुलर, दैट इज सेल्स, अफेक्टेड सेल्स में टारगेट करना है, देन इट इज सेकेंड ऑर्डर टारगेटिंग। नेक्स्ट, अगर आपको सेल के अंदर तक लेके जाना है, दैट इज सेल्स के अंदर जो आपके इंटरसेलुलर ऑर्गेनल्स है, ठीक है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाटएवर इज इट प्रेजेंट इन योर सेल, सो अगर वहाँ पे आपको टारगेट करना है, सो दैट इज थ्रू थर्ड ऑर्डर एक्टिव टारगेटिंग। सो एक्टिव टारगेटिंग इज नथिंग बट आपके ड्रग और कैरियर का जो स्ट्रक्चर है या फंक्शन है उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके उसको सीधे हम आपके डिलीवर करते हैं टू द टारगेटेड साइट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ड्रग एक्टिव टारगेटिंग। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है दैट इज डुअल टारगेटिंग। डुअल टारगेटिंग में क्या होता है आपका, मैंने पहले बोला है, दैट इज यू हैव ए ड्रग एंड ए कैरियर, ठीक है। अब तक हम सारे जो 3 स्ट्रैटेजीज हमने देखे हैं, इन ऑल द स्ट्रैटेजीज हमने ये देखा है जो कैरियर है उसका सब एक ही फंक्शन है कि आपके ड्रग को लेके जाना, कैरी करना और आपके ड्रग टारगेटिंग साइट में जाके रिलीज कर देना, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन डुअल टारगेटिंग थोड़ा सा अलग है। डुअल टारगेटिंग में आपका जो कैरियर मॉलिक्यूल है उसका भी खुद का एक थेराप्यूटिक एक्शन होता है, ठीक है, लेकिन दैट इज फॉर ए गुड रीज़न। आपका जो कैरियर का थेराप्यूटिक एक्शन है वो आपके ड्रग का थेराप्यूटिक एक्शन को एनहांस कर देता है, बढ़ाता है। दैट इज यू हैव हर्ड अबाउट सिनर्जिज्म, यू हैव वेरी मच हर्ड अबाउट सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी। इट इज सिमिलर दैट सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी कि आपका सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी में क्या होता है, अगर आप 2 ड्रग को एक साथ डिलीवर करते हो, एडमिनिस्टर करते हो, तो एक दूसरे का वो दोनों ड्रग एक दूसरे की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी सिमिलर है, वही सिस्टम हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। दैट इज आपके कैरियर मॉलिक्यूल्स जो है वो उसका जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी है वो आपके ड्रग की थेराप्यूटिक एक्टिविटी को एनहेंस करता है। सो यहाँ पे कैरियर नॉट ओनली इज रिलीजिंग द ड्रग, इट इज ऑल्सो एनहेंसिंग द थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ द ड्रग। सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डुअल टारगेटिंग। से डुअल टारगेटिंग का मतलब ये दो तरीके के काम हो रहे हैं, 2 फंक्शंस हो रहे हैं। सो सिमिलरली डुअल टारगेटिंग, दैट इज ड्रग कैरियर इज गिविंग एनहांसिंग द थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है दैट इज योर डबल टारगेटिंग। डबल टारगेटिंग नाम से पता चल रहा है 2 चीज़ें होंगी। सो यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं दैट इज योर स्पेशल कंट्रोल, अनदर वन इज टेम्पोरल कंट्रोल। स्पेशल कंट्रोल में वही है टारगेट करना, रिलीज करना, आपके स्पेसिफिक टिश्यू सेल्स में जाके टारगेट करना, दैट इज स्पेशल कंट्रोल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम अब तक करते आए हैं टारगेट करना, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो सिर्फ डबल टारगेटिंग में होती है, दैट इज योर टेम्पोरल कंट्रोल, ठीक है। टेम्पोरल कंट्रोल क्या है, जो बाहर से हम या फिर बाहर जब हम फॉर्मुलेट करेंगे आपके कैरियर को, उसके रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी, दैट इज किस रेट में आपके कैरियर आपका ड्रग रिलीज करेगा एट द टारगेटेड साइट, उस रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं इन डबल टारगेटिंग। सो दीज आर द 2 टाइप्स, दैट इज स्पेशल कंट्रोल
and the temporal control, both this if you add you will get your double targeting. ठीक है, is it clear? So targeting means targeting to the targeted site, and temporal control is nothing but controlling the rate of the drug delivery by your carrier. So next one is combination. Combination is nothing but आप यहाँ पे कैरियर, अब तक सिर्फ हमने कैरियर लिया था, कैरियर और ड्रग को लिया था, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें लेंगे, कैरियर, पॉलीमर्स, होमिंग डिवाइस. ठीक है, होमिंग डिवाइस इज नथिंग बट जिससे हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को बढ़ा सकते हैं, दैट इज नोन एज होमिंग डिवाइस. दैट इज अ सिस्टम or that is a device through which we can extend or enhance our carrier system. So it includes, it is a combination of all these things, that is carriers, polymers, homing device, ठीक है, with the drug, not to forget with the drug towards the specific targeted site. ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके कैरियर, पॉलीमर, होमिंग डिवाइस, फिर drug, homing device, or with the drug will be carrying it towards the targeting site. So this is known as we are combining all these 4-5 things together, that is why it is known as combination targeting. Okay, these are the main strategies of your drug targeting. Other than that, we have 3 more approaches, that is your magnetically modulating drug targeting, prodrug and monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies, that is for immunological disorders. आपका monoclonal antibody एक specific antigen के साथ कब अटैच होके बाइंड होके आपको immunological activities प्रोवाइड करता है. Magnetically modulated drug is nothing but आपका जो भी हमने अभी तक कैरियर्स देखे हैं, दैट इज लाइपोसोम्स, नियोसोम्स, नैनो पार्टिकल, सबको आप एक मैग्नेटिक के साथ या फिर मैग्नेटिकली आपको उसको आप कर दीजिए, मैग्नेटिक कैरियर्स बना दीजिए. दैट मीन्स आपका जो कैरियर्स है उसको आप मैग्नेटिक कैरियर्स बना दीजिए, उसको साथ आप ड्रग को अटैच करिए एंड इट विल बी रिलीजिंग योर ड्रग थ्रू द सर्कुलेशन टू द टारगेटेड टिश्यूज एंड द लिवर, स्प्लीन, दैट इज द ऑर्गन्स. ठीक है, सिंपल है. जो भी आपके कैरियर्स है उसको आप मैग्नेटिक के साथ अटैच कर दीजिए, मैग्नेटिकली एक्टिव बना दीजिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एक अप्रोच एक आप डाल दीजिए ताकि आप ड्रग को वो सीधे जाके आपके टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में जाके वो डिलीवर कर सके. ठीक है, सो दिस इज योर मैग्नेटिकली मॉड्यूलेटिंग ड्रग टारगेटिंग. आप अपने कैरियर्स को मैग्नेटिकली मॉड्यूलेट आपको करना है. सो बाय दिस थिंग you can release your drug in the drug targeted tissues या फिर liver, spleen, bone marrow, that is the organs. Next जो approach हमने देखा था that is your prodrug. prodrug में क्या है आपको पता है? prodrug it is आपका एक कैरियर सिस्टम है जिसका कोई भी थेराप्यूटिक वैल्यू, थेराप्यूटिक एक्शन नहीं है, दैट इज नोन एज प्रोड्रग. सो प्रोड्रग क्या करता है? एक आपके ड्रग के साथ अटैच होता है. अटैच होने के बाद यू कैन सी हियर दैट इज योर प्रोड्रग, फाइन, एंड विद दैट योर ड्रग हैज बीन अटैच्ड एंड दिस प्रोड्रग इज ओनली अफेक्टिंग योर टारगेटिंग सेल. दैट इज आपका ये प्रोड्रग आपके बायो एक्टिव मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा इन द टारगेटेड साइट, और जो अफेक्टेड सेल है वही अफेक्ट होगा आपका, वही आपका अफेक्ट हो रहा है, ओनली दैट पोर्शन हैज़ बीन अफेक्टेड. और यहाँ पे नो एक्शन ऑन द नॉन टारगेटेड या नॉन अफेक्टेड सेल्स के ऊपर आपका प्रोड्रग का कोई एक्शन नहीं है. ठीक है, सो प्रोड्रग विल बी ओनली अफेक्टिंग द टारगेटेड, आपके टारगेटेड साइट में ही आपका प्रोड्रग रिलीज करेगा आपके ड्रग को और इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा आपके सिर्फ टारगेटेड साइट के या टारगेटेड सेल के ऊपर, और देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द नॉन अफेक्टिव सेल्स. ठीक है, सो you can see it is releasing your free bioactive molecule at the site of action and it is giving the action to the targeted site, and there is no action on the non affected site. ठीक है, and
सो लास्ट वाला जो हमने देखा था, आई विल गो वंस मोर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड टारगेटिंग, ड्रग टारगेटिंग. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इट इज़ नथिंग बट ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो आपके स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही बाइंड होता है. ठीक है, ये आपके यहाँ तक हमने देखा था, टिल हियर इट इज़ ऑल द कैरियर्स. ठीक है, ये कैरियर्स आपके ड्रग को कैरी करके आपके टारगेटेड साइट तक लेके जाता है. ठीक है, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड होके वो खुद ही वो इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक दीज आर द कैरियर्स. यहाँ पे जितने भी है लाइपोसोम्स, न्यूसोम्स, दीज ऑल आर कैरियर्स. ठीक है, वो आपके ड्रग को सिर्फ लेके जाएगा और रिलीज करेगा. लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज ए कैरियर itself it will produce effect by binding with the antigen, specific antigen. It will give you the immunological effect, immunological therapeutic effect. ठीक है, is it clear? So these are the strategies we have seen. Fine. So passive targeting, active targeting, inverse targeting, dual targeting, double targeting and combination targeting. So these are the various strategies through which we'll be doing our targeted delivery system. That is nothing but what is the targeting delivery system? Drug plus carrier आपके targeted site में जाके आपके drug को release करेगा and expected therapeutic action को deliver करेगा. That's all. ठीक है, so that is known as the targeted drug delivery system. Is it clear? So other than those two, other than all the strategies, we have three more, that is approaches, that is your magnetically modulated drug targeting, your prodrug and monoclonal antibodies. So these are the references you can follow, or these are the books you can follow for your novel drug delivery system chapter or units. And this is all about the introduction about your targeted drug delivery system. So what you have to do, novel drug delivery system is a new for you people, that is comes under your 7th sem, and according to PCA syllabus it is 4th unit is all the carriers which will be following, that is rest of the topics like liposomes, neosomes, nanoparticles. So all these carriers are basically based on the structure and your particle size of the carriers जिसके थ्रू हम अपने ड्रग को टारगेट करते हैं टू द टारगेटेड साइट. ठीक है, सो इसको बनाना, इसको फॉर्मुलेट करना, पहले आप अपना कैरियर को फॉर्मुलेट करोगे. क्या वाइल फॉर्मुलेटिंग आप दो तरीके से कर सकते हो. वाइल फॉर्मुलेटिंग ऑल्सो यू कैन एंट्रैप योर ड्रग, या फिर आफ्टर फॉर्मुलेटिंग ऑल्सो यू कैन एंट्रैप योर ड्रग इनसाइड द कैरियर. ठीक है, सो कैरियर जब आप फॉर्मुलेट करोगे यू हैव टू सी कि देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज, कंपेटेबिलिटी, पार्टिकल साइज, नेक्स्ट ड्रग रिलीज, ड्रग एंट्रैपमेंट, ड्रग लोडलिंग, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए वाइल फॉर्मुलेटिंग योर ड्रग कैरियर सिस्टम. ठीक है, एंड दीज आर द बुक्स यू कैन फॉलो. अदर देन दैट यू कैन एनकेज इन इज वन very much followed books for novel drug delivery system that you can follow for your then SPVS, that is also one very good book for your novel drug delivery system. So what I have told, this is the introduction about your novel drug delivery system. So other जब भी हम आगे हम carriers पढ़ेंगे in detail, ये सारे स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करेंगे ताकि हम अपने ड्रग को प्रॉपरली रिलीज़ कर सके आपके टारगेटेड साइट में, और आपका जो डिज़ायरेबल थेराप्यूटिक इंडेक्स है या थेराप्यूटिक एक्टिविटी है या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हम प्रॉपरली एनहांस कर सके. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट योर इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट विल बी लाइपोसोम्स. So we thank you so much. Read well, and this is a new topic for you. So remember and study well for your understand properly the concept of the targeting. Then it will be very easy for everyone. Okay, thank you.